डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या है? दिस इज़ ऑल्सो नोन एज प्रत्यायोजन। किसी उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ कर्मचारी को किसी विशेष जिम्मेदारी एवं अधिकार प्रदान करना ही डेलीगेशन कहलाता है, और हिंदी वी आर सेइंग प्रत्यायोजन। तो दिस इज़ द एक्ट ऑफ गिविंग ए पर्टिकुलर ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब etc. to someone else is called delegation. So now there is introduction. Delegation is one of the core concept of leadership. It is effective nurse management competency by which nurse manager get work done through their employees. Delegation is defined as getting work done through others or as directing the performance of one or more people to accomplish organization goal. तो क्या है? काम को सही समय पर गुणवत्तापूर्वक पूरा किया जाए। उसके लिए चाहे तो उस काम को 2 या 4 लोगों में बांट के उस काम ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो भी हैं उनको समय से पूरा किया जाए। Next definition, delegation is the process of assigning responsibility and authority to co-worker and ensuring his accountability. So when assigning the role or task to the subordinate, same way a responsibility authority is also transferred to the co-workers, and also that co-workers will be accountable for that particular task. So this is the meaning of delegation. अगर किसी को हम डेलीगेट कर रहे हैं तो सेम वे जो काम दिया गया है उसी से संबंधित जो पावर है और जो उसकी जवाबदेही है वो सब भी सुनिश्चित करना डेलीगेशन कहलाता है। Now we will see essential aspect of delegation. So there are the main 3 aspects are there. पहला है assignment of duties and task. मीन्स जो भी हम काम दे रहे हैं सबऑर्डिनेट्स को उसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि उसको किस किस तरह की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है और उसकी लिमिट्स क्या हैं काम करने की एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड ग्रांट ऑफ अथॉरिटी, पावर, राइट और परमिशन। तो दिस इज़ द थिंग कि ग्रांट ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, मीन्स उसके पास पावर होनी चाहिए उसका पर्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए। उसको अगर कुछ दिशा निर्देश निकालने हैं अपने, या कुछ कंट्रोलिंग पावर लेके आना है, या कुछ अपने नियम कानून कुछ नए लगाने हैं, तो उसकी एक पावर उसके पास होनी चाहिए। थर्ड है क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। उसकी जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी चाहिए कि वो उस कार्य को अगर वो पूरा कर लेता है समय से या नहीं कर पाता है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी जवाबदेही भी उसी सबऑर्डिनेट्स की रहेगी। तो दिस इज़ द 3 एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ डेलीगेशन। लिस्ट ऑफ वेज और स्टेप्स फॉर नर्स मैनेजर टू सक्सेसफुली डेलीगेट। हाउ ए नर्स कैन सक्सेसफुली डेलीगेट हिज task to their subordinates. So first is the train and develop subordinates. So it is very important that nurse has to, or nurse manager has to give the training to the subordinates, and if there are some lackings are there or problems are there with the subordinate, that should be a clarification is to be given by the nurse manager. And same way whatever task she is delegating to their subordinates, so same way power or authorities to be also given to that person, and details of the job to be clarify, and also opportunity for growth. And this is also the thing that nurse can motivate the subordinates why she is giving this task to that person, so that the opportunity for growth is to be increased, or and written instruction agar if it is needed, in that case this should be also provided to that subordinates. Second आपका plan ahead and it prevents problems. So if you are having a blueprint of the plan and afterwards if you are implementing the things, so it will prevent the प्रॉब्लम। मतलब द प्रॉब्लम्स जो आएंगी वो थोड़ी सी मिनिमाइज़ की जा सकती है या कम की जा सकती हैं। थर्ड आपका है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट्स। सो इवन दो डेलीगेशन है, अथॉरिटी भी दे दी, बट स्टिल it is needed that how they are performing the work, so that should be supervised by the person, those who are delegating the thing, and also there should be coordination of work to be there। मतलब
कि जो भी वर्क वो सबऑर्डिनेट कर रहा है उसको एक तो निरीक्षण उसका करते रहना है, और दूसरी चीज़ कि उसको अगर कहीं पे इसको नीड है कुछ गाइडेंस की, इन दैट केस डायरेक्शनल गाइडेंस ऑल्सो उसको दिया जाना चाहिए। तो सिक्स इज़ अ सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड थिंक अबाउट न्यू आइडियाज़। तो नए विचारों को, नए जो तरकीबें हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। सेवन्थ, एक्सेप्ट डेलीगेशन एज डिज़ायरेबल। तो जितना भी डिज़ायरेबल है तो उसको डेलीगेशन मतलब उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि दूसरों को भी अपॉर्चुनिटी मिले प्रोग्रेस करने की और अपना जो कैपेबिलिटीज़ है उनको दिखाने की। एंड एट्थ है आपका स्पेसिफाई गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो जो भी गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पर्टिकुलर टास्क के या उस जॉब के, तो दैट शुड बी एक्सप्लेन क्लियरली। नाइन्थ है नो सबऑर्डिनेट्स कैपेबिलिटीज़, मीन्स जो अगर उनकी में क्षमता है और जो भी काम आप उनको दे रहे हैं वो उनकी क्षमता से मैच कर रहा है, उसी समय में वो कार्य उनको डेलीगेट किया जाना चाहिए। सो नो सबऑर्डिनेट्स कैपेबिलिटीज एंड मैच टास्क और ड्यूटीज टू द एम्प्लॉय। बी श्योर द एम्प्लॉय कंसीडर इट्स इम्पोर्टेंस। तो दिस इज द नाइन्थ स्टेप। सो टेंथ इज द टेक एन इंटरेस्ट। 11th एसेस रिजल्ट। तो जो भी उसके परिणाम आ रहे हैं उसको असेस करना चाहिए। ऑन सेम वे द नर्स मैनेजर शुड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट एम्प्लॉयज विल परफॉर्म डेलीगेटेड टास्क इन देयर ओन स्टाइल। तो दिस इज़ द थिंग। तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो आपके ही तरीके से काम करे, उसको अपने तरीके से अपने ढंग से भी कार्य कैसे लेना है कैसे करना है उसकी उसको फ्रीडम देनी चाहिए। देन 12th इज़ द डू नॉट टेक बैक डेलीगेट टास्क। तो जो भी काम दिया गया है वो उससे वापस नहीं लेना चाहिए। दिस इज ऑल्सो द स्टेप्स ऑफ सक्सेसफुल डेलीगेशन। सो वाई इट इज़ नीडेड, व्हाट आर द रीज़न ऑफ डेलीगेशन। पहला इसलिए कि रूटीन वर्क, अगर कुछ ऐसे रूटीन टास्क जो किया जाता है उसके लिए हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी या टास्क उसका दे सकते हैं। सेकंड है असाइनिंग टास्क फॉर विच द नर्स मैनेजर डज नॉट हैव टाइम। तो ऐसे काम के लिए जिसके लिए बिजी शेड्यूल है नर्स मैनेजर का एंड शी इज़ नॉट एबल टू कंप्लीट अदर या फोकस नहीं कर सकती दूसरे कामों पे, तो इन दैट केस उस तरह के काम को दिया जा सकता है। थर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। थर्ड इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग। Suppose that if some problems are there in the world, and if this type of problems can be solved by the delegation, in that case this delegation can be done by the nurse manager. फोर्थ इज़ द चेंजेस इन द नर्स मैनेजर्स ओन जॉब एम्फेसिस। अगर ऐसा कुछ है कि उसकी जो एम्फेसिस है उसी में ही कुछ चेंजेस आ गए हैं नर्स मैनेजर्स की, इन दैट केस ऑल्सो दिस डेलीगेशन कैन बी डन। नेक्स्ट इज कैपेबिलिटी बिल्डिंग। हियर व्हेन सबऑर्डिनेट्स विल गेट लाइक दिस टाइप ऑफ टास्क, तो उनके में क्या होगा, उनकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, उनकी क्षमताएं बढ़ेंगी और वो अच्छे से काम को अंजाम दे पाएंगे। So the nurse manager should be careful not to misuse the clinical nurse by delegating tasks that can be done by non-nurse or non-licensed personnel. सो नर्स मैनेजर को क्या है, इस तरह की चीज़ें डेलीगेट नहीं करनी चाहिए जो कि पहली बात दूसरा आदमी अगर उस चीज़ को करने के लिए सक्षम नहीं है, या कि कोई नॉन लाइसेंस्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड नर्सेस नहीं है, तो उन लोगों को इस तरह की जो टास्क है वो नहीं देने चाहिए। तो इसके लिए दैट नर्स शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। नाउ बैरियर्स इन डेलीगेशंस। पहला है एज ए डेलीगेटर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। पहला है प्रेफरेंस फॉर ऑपरेटिंग बाय वनसेल्फ। तो लोग सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि ये मेरा काम है, मुझे ही करना है। तो दिस इज़ द थिंग दैट इज़ वाई दे आर फेसिंग प्रॉब्लम टू डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड है आपका डिमांड दैट एवरी वन नो ऑल द डिटेल्स। थर्ड लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन द जॉब और इन डेलीगेटिंग। तो ऐसा भी है कि अगर उनको अनुभव नहीं है किस तरह से चीज़ों को डेलीगेट किया जाना है, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो। फोर्थ है लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल इन बैलेंसिंग वर्कलोड्स। सो अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल कैसे ऑर्गेनाइज करना है चीज़ों को, या किस तरह का काम किसको देना है, इस तरह के अगर डिसीजन पावर में प्रॉब्लम है या कॉम्पिटेंसी नहीं है, इन दैट केस ऑल्सो द डेलीगेटर विल नॉट ट्रांसफर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर पर्सन।
देन इनसिक्योरिटी एक हो जाती है कि ऐसा ना हो कि जो दूसरा पर्सन है वो बहुत अच्छे से काम को करे, एक इसकी इनसिक्योरिटी होना। फियर ऑफ बीइंग डिसलाइक्ड, तो इसको में ऐसा फियर होता है कि ऐसा ना हो कि जो बाकी लोग हैं वो उसको या उसके काम को डिसलाइक करने लगे। देन सिक्स्थ है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन सबॉर्डिनेट्स, तो अगर कॉन्फिडेंस की कमी है सबॉर्डिनेट्स में तो इन दैट केस ऑल्सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। नाइन्थ इज परफेक्शनिज्म लीडिंग टू एक्सेसिव कंट्रोल, तो यहाँ पे क्या है कि अगर वो बहुत ही परफेक्ट है डेलीगेटर जो डेलीगेट कर रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तो इन दैट केस क्या है वो एक्सेसिव कंट्रोल रखेगा अपने सबॉर्डिनेट्स पे, और वो सबॉर्डिनेट्स की पूरी मतलब एक अपनी तरह से काम करने का उसको मौका नहीं देगा। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम फेस्ड इन एज ए डेलीगेटर। नाउ बैरियर्स इन डेलीगेट, फर्स्ट ऑफ ऑल लैक ऑफ एक्सपीरियंस, अगर जिसको भी सबॉर्डिनेट्स को जिम्मेदारियां देना है अगर उसके पास अनुभव की कमी है। सेकंड है आपका लैक ऑफ कॉम्पिटेंस, या उसके में जो क्षमता होनी चाहिए वो नहीं है, या अवॉइडेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उस कार्य को करना नहीं चाहता, नई जिम्मेदारियां नहीं लेना चाह रहा है। फोर्थ ओवर डिपेंडेंस ऑन बॉस, उसकी जो बहुत अधिक वो बॉस के निर्णयों पर ही निर्भर है, वो अपने आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता है। फिफ्थ है ओवरलोड ऑफ वर्क, अगर उसके पास ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज़्यादा काम है इन दैट केस वो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में उसको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो दीज आर द बैरियर्स इन डेलीगेट। नाउ बैरियर्स इन सिचुएशन, पहला है वन पर्सन शो पॉलिसी, अगर कुछ इस तरह की जिम्मेदारियां किसी अधिकारी के पास हैं जो दूसरों के साथ साझा नहीं कर सकता है, या कुछ ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं जो वो नहीं बता सकता है, इन दैट केस वो दूसरे को डेलीगेट नहीं कर पाएगा उस काम को। फिर नो टॉलरेंस ऑफ मिस्टेक्स, थर्ड कन्फ्यूजन इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फोर्थ अर्जेंसी लीविंग नो टाइम टू एक्सप्लेन। तो दीज 4 पॉइंट्स आर देयर इन दिस सिचुएशन कि अगर कोई ऐसी पॉलिसी है जो कॉन्फिडेंशियल है बहुत और उसको किसी दूसरे के साथ साझा नहीं किया जा सकता है, या ऐसी जिम्मेदारियां जिसमें गलतियों की कोई जगह ना हो, या उनमें कुछ जो जिम्मेदारियां दी जा रही हों उनमें अगर कन्फ्यूजन या असमंजस है, या एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दी जा रही है और उसको एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया जा पा रहा है कि उसको क्या क्या कार्य करना है, तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, बैरियर इन सिचुएशन। एडवांटेजेस ऑफ डेलीगेशन, तो फर्स्ट है इसमें कोऑर्डिनेशन, तो यहाँ पे क्या है जो भी जूनियर है या सीनियर है उनके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है। सेकंड है आपका इंक्रीज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पे जो जिम्मेदारियाँ हैं उसका अच्छे से निर्वहन होता है। और सेकंड थिंग यहाँ पे एम्प्लॉय की जो पोटेंशियल जो स्किल्स हैं कैपेसिटीज़ हैं उसका भी पता चलता है। थर्ड है आपका इट रिड्यूसेस द एग्जीक्यूटिव बर्डन, तो जो उच्च अधिकारी के लोग हैं उनका थोड़ा बर्डन कम हो जाता है और वो टाइम जो है जिन चीज़ों पे मेन फोकस करना चाहिए उन पे फोकस करते हैं, और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब दूसरों को दे देते हैं तो वहाँ पे उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, जो मेन फोकस करने वाली चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा वो फोकस कर पाते हैं। फोर्थ है आपका डेलीगेशन मिनिमाइज डिले व्हेन डिसीजन हैव नो लॉन्गर टू बी रेफर्ड अप टू लाइन, तो ये भी है कि अगर डेलीगेट कर दिया गया अथॉरिटी दे दी गई है तो इससे जो निम्न कर्मचारी हैं या नीचे स्तर पर जो काम कर रहे हैं वो निर्णय ले लेंगे, तो यहाँ पे जो है काम में डिले नहीं होगा, देरी नहीं होगी और समय से कार्य को पूरा किया जा सकता है। So next advantage, delegation permits the subordinates to enlarge their jobs, to broaden their understandings and develop their capacities। तो ये एक जो subordinates हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर रहता है कि यहाँ पे वो अपनी क्षमताओं को और बढ़ा सकते हैं और अपनी जो स्किल्स हैं उनको भी निखार सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका डेलीगेशन रेजेस सबऑर्डिनेट्स पोजीशन एंड इम्पोर्टेंस एंड गिव जॉब सेटिस्फैक्शन, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं अगर उनको इस तरह की जिम्मेदारियाँ मिलती हैं उच्च अधिकारियों की तो क्या होगा, उनकी पोजीशन कहीं ना कहीं बढ़ती है। और सेकंड थिंग क्या है कि उनको एक जॉब सेटिस्फैक्शन भी रहता है और उनको अपना महत्व भी समझ में आता है। तो कहीं ना कहीं ये डेलीगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सबऑर्डिनेट्स to show their importance and to raise their position and for job satisfaction. So today we had seen about delegation.
and its meaning and definition. Then we had seen how we can transfer the responsibility to our subordinates, what are the problems people are facing as a delegator, as a delegate, or as a in situation. So I hope this lecture will be helpful for you to understand delegation. Thank you so much.